प्रोफेशनल टाइम्स के वुमेन सेल की तरफ से आप सबका स्वागत है। आई कैन सी हमारे तीनों पैनलिस्ट भी आ गए हैं। मनीषा जी, आपकी स्क्रीन अभी भी विजिबल हॉरिजॉन्टल हो रही है मैम। मीनल, मैं ये लैपटॉप में कर नहीं पा रही हूँ, मैं इससे ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, आप म्यूट कर दीजिए। मीनल, वॉइस चेक कर लो। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, you're audible. Hello, Meenal, can you hear me? So जैसा कि हमारा कोरम पूरा हो गया है and technically we are all sound and safe to start. So again a very warm welcome to all of you. Thank you all our panelists, Savita ji, Manisha ji, Ashima ji for joining. And हमारे साथ हमारे inaugural address के लिए we are very fortunate to have Kamisha ma'am also with us. So thank you for joining ma'am. So आज का ये जो हमने सेशन रखा है, basically this is, as you all can see, it's felicitating the empowered woman. So हम कहना चाहते हैं, मैं एक लाइन से शुरू करती हूँ, आओ सफर की बातें करें, मंजिलों में रखा क्या है। तो जैसा कि हम लोग पहले बात किया करते थे कुछ साल पहले तक, जब हम बात करते थे वुमेन एम्पावरमेंट की, बट मुझे लगता है कि आज की डेट में हम लोग उस मुकाम पे पहुंच गए हैं, शायद हम लोग इंस्टीट्यूट लेवल पे भी ये बात करते हैं कि इट्स नॉट नो मोर वुमेन एम्पावरमेंट, बट इट इज एक्चुअली द सेलिब्रेशन एंड द फेलिसिटेशन एंड द रिकॉग्निशन ऑफ एम्पावर्ड वुमेन। बट आज तो शायद ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से जो हमारा पैनल है और जो हमारे इनॉग्रेल ड्रेस के लिए जो लेडीज आज यहाँ इकट्ठी हुई हैं, कि शायद वी आर नॉट इवन जस्ट टॉकिंग अबाउट एम्पावर्ड वुमेन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पावरिंग वुमेन। क्योंकि आप सब अपने अपने फील्ड के थ्रू आगे अपनी अपनी सोसाइटी में जो वुमेन्स हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन का रोल प्ले कर रहे हैं और उनको एम्पावर करने के लिए भी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल सी पोयम है जो बहुत करीब है इस मेरे इस वुमेन सेंट्रिक चीज के लिए, तो मैं उसे रिसाइट करना चाह के शुरू करती हूँ। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब आसमान में मैं उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार, बहुत बड़ा है ये संसार। So this is basically how we say that, you know, we women need to just spread our wings and keep spreading the creativity, positivity, strength that we have in ourselves. And आप एक जो आज यहाँ पर हमारे साथ celebrity women आए हैं, वो सब उस चीज को बिल्कुल पोर्ट्रे करते हैं definitely. So आज जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे पैनल पे तीनों पैनलिस्ट आए हैं,
they are actually some people जिनको ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्होंने अपने passion को अपने profession में convert किया है. They are proud homemakers. Fortunately, ऐसा है कि they are all wives to CA professionals. So that is how ये हमारे CA fraternity का एक बहुत important part है, because like we say that behind every successful man there is a woman. So behind all those professionals, these are the celebrated women, and definitely behind every successful woman like these are also some men, which are their husbands, fathers and brothers for sure. So we want to congratulate them also for their role. So without now wasting much time, I would want Kamisha ma'am to give the inaugural address. And before she does that, I would just like to give a brief introduction for people who don't know how versatile her profile and her contribution has been to our fraternity as a professional, as a social contributor, as an entrepreneur. So we of course know she's a second term Central Council member of the Institute of Chartered Accountants of India. She's nominated as member of the Distinguished International Forums for Accounting Professionals like SAFA Committee for SAARC countries on various matters like professional ethics and small and medium practitioners. She's the chairperson of the Women Leadership Committee of the South Asian Federation of Accounts for SAARC countries. Contributions of her leadership: first chairperson of the CIRC, former director of the Madhya Pradesh Stock Exchange and the Shubha Lakshmi Mahila Cooperative Bank, and of course, as I mentioned, not just her contribution towards the professional world, but also towards the social fraternity, and she's been recognized with recognitions like Pratibha Khoj Samman by the Patra Lekhak Manch and the Devi Ahilya Nari Gaurav Alankanan Award. So we are very proud that she is here with us today on this platform, wherein, of course, her leadership note will definitely be inspiring a lot of other women to come forward and follow their passion and follow their dreams. So now would request Kamisha ma'am to please, address our forum. Thank you, Meenal, and greetings everyone. First, I would like to thank Sanjeev Singhal ji. He is my council colleague, and he connect me with M.K. Agrawal ji and this Professional Times. क्योंकि फर्स्ट टाइम आई थिंक कि मैं ये एक डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम, डिफरेंट टाइप का कंसेप्चुअलाइज किया है जो ये प्रोग्राम, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अमंगस्ट ऑल ऑफ यू, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वुड लाइक टू थैंक संजीव सिंघल जी, क्योंकि हम जैसे कि I am only female council member in our entire council, 40 members है, 32 elected members है, तो but I am very happy कि I am here amongst all of you. Different type of females are there, and here I would also recognize the presence of beautiful women, maybe entrepreneur है, जैसा कि मिनल ने बताया कि बहुत सारी जो फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ जो सीए है उनकी वाइफ्स भी है. So I would also recognize everyone, and first I would like to just wishing you and your family is the very best in this trying time because of this corona. Stay safe, stay healthy, and take every possible care of yourself. And as you all are aware that because of this COVID-19 situation, it is really imperative for all of us to accept that the world will never be the same at least next 6 months or 1 year. So the ways in which we meet people, we do our businesses, everything would change. But on the plus point, here's an opportunity to innovate new ideas because of testing time and tough time. यही टाइम रहता है जब हमारे पास ऐसा कुछ रहता है कि हम डिफरेंट करते हैं, उसी में स्ट्रगल टाइम में ही कहीं ना कहीं हम अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं. और जैसे कि विमेन स्ट्रेंथ की बात है, जस्ट मैं इनॉग्रेल पहले थोड़ा सा था कि मुझे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी और चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात थी, बस मीनल ने काफी अच्छे से वो अपडेट ये करा कि दिस इज टोटली डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ प्रोग्राम. तो हियर फर्स्ट आई विल शेयर सम डेटाज रिलेटेड टू अवर फीमेल मेंबर. जैसा मीनल बता रही थी कि एम्पावर्ड विमेन, तो एम्पावर्ड तो हम लोग काफी उस सेंस में है मीनल, बिकॉज अभी आप लोग जैसे यंग जनरेशन में भी है और जो हमारे पैनलिस्ट है they are also very settled, so we can say that empowered, we are empowered, but in different manner in the role of leadership. यदि हम लीडरशिप की रोल की बात करते हैं तो समवेयर हम लोग स्टिल अभी
काफी मुझे लगता है कि 49% यदि पॉपुलेशन का पार्ट है, तो आप लीडरशिप रोल पे कितनी फीमेल को देखोगे कि वो उस लेवल पे है। चाहे हम बात करते हैं एंटरप्रेनर्स की, चाहे हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल सीईओ और सीएफओ की बात करते हैं, तो निफ्टी 50 में टॉप जो 30 सेंसेक्स 30 की बात करते हैं, तो एक भी फीमेल उस पर्टिकुलर लिस्ट में नहीं है। जब हम NSE 500 टॉप सीईओ सीएफओ की बात करते हैं, तो सिर्फ 15 सीएफओ है। तो आप ये समझिए कि लीडरशिप रोल में कहीं ना कहीं स्टिल हम फीमेल को, विमेन मेंबर को उस रोल में आना पड़ेगा। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की भी यदि इंडिया की बात करते हैं, तो यदि 45% फीमेल उसको कहीं ना कहीं शेयर करती है हम लोग, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत कुछ डिपेंड होती है हमारे कंट्रीब्यूशन से। एज अ एंटरप्रेनर हो सकता है, एज अ हम लोग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं जो हम सर्विसेज देते हैं। हम यदि वी टॉक अबाउट द चार्टर्ड अकाउंटेंट नंबर्स, तो आप देखेंगे कि 2000 में जो विमेन मेंबर थी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, वो 8% थी, मतलब 2000 तक। देन 2014 में 22% है, एंड प्रेजेंटली ओनली 26%। बट यस, जो फीमेल है, गर्ल स्टूडेंट है, दैट इज अप्रोक्स 41%। तो कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंसी फैटर्निटी और हम निफ्टी का सीईओ सीएफओ लीडर्स, तो हम इजीली विजिबल कर पाते हैं कि हमारी फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट या हमारे विमेन एंटरप्रेनर किस जगह स्टैंड करते हैं लीडरशिप रोल में भी। सेकंड, जैसा कि जो SG 5 गोल है, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट की जो गोल्स है UN का, अंडर दैट जेंडर इक्वेलिटी का जो कंसेप्ट है, वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव मैनर में एट ऑल लेवल हम लोग नहीं देखते हैं, नहीं देख पाते। व्हाट इज द रीजन? सम टाइम हमारे खुद के कंस्ट्रेंट होते हैं कि हम उस लेवल तक इतना एग्रेसिव इफेक्टिवली नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वी हैव आवर ओन प्रायोरिटीज रिलेटेड टू सोशल, रिलेटेड टू आवर फैमिली। तो हम दूसरे कितने फ्रंट में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करें, बिकॉज थ्रू आवर सभी जगह बात होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमको इक्वेलिटी का है, जेंडर इक्वेलिटी का बात होता है। बट लेवल प्लेइंग फील्ड की जब हम लोग बात करते हैं कि क्या हमारे पास स्पेशली हर शेयरिंग होती है 50-50% पे, और जो हमारा सोशल और सामाजिक स्तर है उस पे भी यदि हम जब बात करते हैं, तो आज भी यदि हम लोग पूरा दिन वर्क करते हैं, तो हम हमारे घर को भी मैनेज करते हैं आइदर थ्रू अवर दैट सपोर्ट सिस्टम मेड। हम कॉल करके बोलते हैं इस तरीके से ये बना के रखना, हम लोग आएंगे, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। तो माइंडसेट में स्टिल वी आर नॉट फ्री एट दैट अप टू दैट एक्सटेंट। एक्सेप्शनल हर जगह पे होते हैं, वो एक्सेप्शनल को हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं जनरलाइज मैनर में, बट जनरलाइज जो फीमेल फेस करती है दैट इज रिलेटेड टू दैट, कि वो फ्रीडम, वो अपॉर्चुनिटी और वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या हमारी फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट या फीमेल एंटरप्रेन्योर या विमेन मेंबर को उस लेवल तक मिलती है कि नहीं मिलती है। सेकेंड, हमेशा जब हम लोग एक सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं कि करियर और वर्क, हमारे पेरेंट्स हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, हम टॉप लेवल का सब बनते हैं। बट अगेन आफ्टर मैरिज वाला जो सिचुएशंस रहता है, जो मैं अपना ही स्टोरी इसलिए शेयर करूंगी थोड़ा सा। आई एम फ्रॉम इंदौर, और जैसा कि आफ्टर मैरिज, चाहे वो प्रोफेशनल है, डॉक्टर में फिर भी कम है, बट यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो 5 से 10 साल उस फेटर्निटी में वापस से इफेक्टिव प्रैक्टिस में आना। आज हमने भी वुमेन मेंबर एम्पावरमेंट डायरेक्टरेट कन्वीनर हूँ, तो उसमें इफेक्टिव वो रोल प्ले करने का स्टिल है कि 5 से 10 साल उनकी प्रायोरिटी फैमिली में सेट होना रहती है, और उसके बाद हम लोग 5 से 10 साल पीछे हो जाते हैं। तो अभी एक ग्लोबल सेमिनार में यही डिस्कस हुआ था कि जैसे 60 यदि रिटायर एज है, तो फॉर फीमेल है ना 65 होना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेक लेती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ से। अपनी यदि एंटरप्रेन्योरशिप भी करनी है, तो वो कब दिमाग में आता है जब हम लोग फ्री हो जाते हैं अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो 5 से 10 साल हमको वो वाला पीरियड ऑलवेज कंसीडर करते हैं। साथ में इसके लिए मैं एक जरूर बताना चाहूंगी कि ऑलवेज हम विमेन लोग रहती, वो जगल रहता है, मतलब कहीं ना कहीं बिटवीन टू फ्रंट्स तो रहते ही हैं। फैमिली है, देन इफ वी आर कैपेबल एंड प्रोफेशनल्स एंड वी आर एंटरप्रेन्योर, तो हम दोनों जगह से हमको जगल है। और फॉर मी, लाइक मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए थर्ड फ्रंट भी है सेंट्रल काउंसिल, क्योंकि मेल के लिए यदि आप सोचेंगे कि काउंसिल इलेक्शन आप लोगों ने, बिकॉज आपके हस्बैंड सबके चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आप ये प्रोसेस देखते होंगे। और आई एम फ्रॉम इंदौर, तो हमारे सेंट्रल रीजन में जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
इन स्टेट में आपको इक्वली सब जगह विजिट करना है लाइक अ मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड उसके बाद भी फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट का यदि एक्टिव, यदि उनको मेन प्लेटफॉर्म पे लाने में भी यदि हम सक्सेस हो जाते हैं तो दैट इज वेरी बिग अचीवमेंट। कि जिसने जो डिग्री ली है, जो क्वालिफिकेशन है, जिसका जो पैशन है, हॉबी है, यदि उसको वो 10, 20, 30% भी इफेक्टिव करती है ना, तो सोसाइटी का टोटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। मेरे लिए भी, सबके लिए रहती है ये एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो एवरी टाइम जितनी भी प्रायोरिटी हमको लिस्ट आउट करना है, तो आई एम शेयरिंग जस्ट दैट की मंत्रा ऑफ सक्सेस। कि यदि आप सेंट्रल काउंसिल में है विथ मेल 32 मेंबर्स है, होल डे मीटिंग्स रहती है, और आप उसमें यदि कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन अवर माइंड हम प्रोफेशनल है। डॉक्टर है तो डॉक्टर है, नॉट विमेन, नॉट एज अ की फीमेल हम लोग है, तो वी आर ओनली एंटरप्रेन्योर, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओनली प्रोफेशनल्स। तो ये कैरी नहीं होता है। और ऑलवेज जो मुझे फीमेल का एक लगता है कि वी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन एवरी फ्रंट। जैसे मेरा सिंपल 2 लाइन में बताऊंगी कि जब मेरी शादी हुई थी, मेरे दोनों फैमिली, एंटायर फैमिली, इन लॉज एंड पीयर में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, स्टिल कोई भी सीए नहीं है, इवन हस्बैंड इज ऑल्सो नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इन दैट केस आपने ऑल टुगेदर डिफरेंट एरिया, डिफरेंट फील्ड चुना। प्रैक्टिस तो है ही है, हमारी जैसे फर्म में है 7 फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट उसके अलावा जो थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, आईसीआई प्लेटफॉर्म कुछ होता है, अपनी हॉबी के लिए थर्ड प्लेटफॉर्म होता है। आई वाज नेशनल बैडमिंटन प्लेयर ऑल्सो। तो कभी कभी लगता है कि मुझे प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि मुझे फर्स्ट फैमिली, देन माय ऑफिस, देन इंस्टीट्यूट भी, और ये चारों को मुझे डायमेंशन को एक ही उस पे रखना है। तो वी हैव 24 आवर्स, उसको मैं किस तरीके से प्रायोरिटी वाइज डिसाइड करती हूँ, डिपेंड ऑन टाइम एंड क्वालिटी टाइम हम कैसे स्पेंड करते हैं। फॉर माय केस कि मैंने पहले 10 साल आफ्टर मैरिज कुछ भी नहीं किया था। आई वाज जस्ट अ हाउस मेकर, होम मेकर और हाउस वाइफ। तो कुछ भी नहीं, सिर्फ सीए, एलएलबी, और जब उस टाइम पे सिर्फ गेन किया, नॉलेज लिया। जैसे बोलते हैं ना कि फिशिंग के लिए पहले से नेट प्रिपेयर करने की बात है, अपने आप को तैयार करने के लिए वो 5 से 10 साल लगाए कि मैं कैसे किस एरिया में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो वर्किंग करा। एंड आफ्टर दैट ब्रांच इलेक्शन कंटेस्ट करा, उसके बाद रीजन, देन सेंट्रल। ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम परमिट करता है, जैसे जैसे सिचुएशंस बनती है, तो आई वुड आल्सो से रिगार्डिंग दैट कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज ऑफ अवर फैमिली एंड अवर सोशल जो भी हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, यदि वो सेट रहेगा तो आगे पूरा सेट रहेगा। बट उससे यदि हमारा वो डिस्टर्बेंस आता है उस लाइफ में, तो आप आगे आसमान नहीं छू सकते इन दैट केस, क्योंकि आप स्ट्रगल ही करते रह जाओगे कि फैमिली में। तो ऑलवेज आई यूज टू से अबाउट दैट कि जो भी डिसीजन लेना है, जिंदगी ट्रायल और एरर पे नहीं रहती है, या एक बार गया तो वापस नहीं आ सकता है। तो आपको उसी सिचुएशंस में आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, वो डिसीजन जरूर हमारा अपना होना चाहिए। एंड उसके लिए हो सकता है 5 साल लगे, 10 साल लगे, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार है। बिकॉज हम लड़के यदि आज हमने डिसाइड किया, मैं कार फॉर्मूला बहुत यूज करती हूँ, कार यानी चेंज द चेंजेबल, हम जो चेंज कर सकते हैं हमारे हाथ में वो चेंज कर सकते हैं। ये होता है कि एक्सेप्टेबल, या हम जो भी चीजें एडप्ट कर सके, जितने चेंजेस है, आप नई लाइफ में जाते हो आफ्टर मैरिज तो चेंज कर सकते हो, वो चेंज कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा होता है कि आर यानी यदि आप रिमूव योरसेल्फ, यदि आप उस सिचुएशन सर्कमस्टांस को चेंज नहीं कर सकते हो, तो ये डिसीजन आपको उसी टाइम लाइफ में लेना चाहिए कि मैं 2 साल बाद सोचूंगी, 4 साल बाद सोचूंगी। नो, आपको आज ही सोचना है। यदि आप 6 महीने भी आपको बहुत मुश्किल लाइफ लगती है, तो आप ये सोचिए भगवान ने एक बार हमको इतनी इंपॉर्टेंट लाइफ दी है, तो इसमें हमारा खुद का भी उतना ही हक है कि हमारी उस अपनी हॉबी को पूरी करने का। बट हाँ, सब्जेक्ट टू बैलेंसिंग विथ ईच एंड एवरीथिंग। तो वर्क लाइफ बैलेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली मैं 2-4-5 पॉइंट आप लोगों से शेयर करूंगी। फर्स्ट, सेट योर प्रायोरिटीज इन लाइफ, क्योंकि अकॉर्डिंग दैट ही हम आगे सक्सेस कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है लेस प्रायोरिटी आइटम हम पहले करने लग जाते हैं। सेकेंड, डिफाइन योर ओन वर्क लाइफ बैलेंस बेस्ड ऑन व्हाट ड्राइव्स यू, एंड डोंट लेट अदर्स गिल्ट यू इनटू मेकिंग डिसीजन। अपना डिसीजन खुद ही लेना है। आप कंसर्न कर सकते हैं, गाइड ले सकते हैं। देन लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो फॉर थिंग्स लाइक गोइंग टू सम सोशल गैदरिंग,
which might not be necessary, depend on our quality, we can decide that कि no कहना हम लोगों को फीमेल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सम टाइम बीइंग लाइक हम बहू है या दूसरी कोई भी कैपेसिटी में सोशल बाउंडेशन रहते हैं, आज हमको वहां जाना है, तो ये हमको डिसाइड करना है कि क्वालिटी वाइज क्या हमारा सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाना है या हम लोग एक्चुअल में मतलब उसका कहीं वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या एडिशन हो रहा है वैल्यू, तो ये डिसाइड हमको है। तो नो या नो कहने का भी एक होना चाहिए। साथ में डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन एंड पिकअप टाइम मैनेजमेंट स्किल प्लस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। फीमेल के लिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी डिजिटल वर्ल्ड से अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कीप लर्निंग एंड डू नॉट हेजिटेट टू आस्क। दूसरे से कुछ भी सीखने में कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये हम नहीं पूछ सकते। देन फॉलो योर हार्ट, find work that you enjoy and believe in as far as possible. And for all women, whether they are entrepreneur, whether they are chartered accountant, professional, be fair, ethical and socially responsible, because उसी से हमारा एक strong समाज बनता है और डेवलप होता है। साथ में फाइनली जो बताना चाहूंगी कि टाइम मैनेजमेंट इज एन आर्ट वेल लर्न। सेकंड, मी टाइम इज एसेंशियल टू रीइनोवेट। ऑलवेज आपका हॉबी एक कोना आपके दिल में ऐसा होना चाहिए कि जो आपको पूरी 24 आवर्स की एनर्जी देता है, चाहे आप नॉवेल पढ़े, चाहे आप जो आपकी हॉबीज है, आपको म्यूजिक की है, आपको खेलने की है, एनी हॉबी जहाँ से आपको एक सुकून मिलता है, वो जरूर आपके उसका पार्ट होना चाहिए। पैशन इज एसेंशियल। एवरी टाइम एम्बिशन इज नॉट नेसेसरीली बैड, कि आपके एम्बिशियस होना जरूरी नहीं है हमेशा, क्योंकि वही आपको मोटिवेट करेगा। देन देयर आर नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। जब भी हम नए फ्रंट सिलेक्ट करते हैं, बीइंग अ फीमेल हमारे लिए 24/7 हम लोग बिजी रहते हैं और हमको मतलब उसी को ऐड करना है कि हम क्वालिटी में क्या कर सकते हैं। मेक योर सपोर्ट नेटवर्क योर पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ। हमारा सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होगा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सो these are some I would say that funda and concept I would say. And one Anupam Kher's novel, that book, The Best Thing About You Is You, तो डेफिनेटली वो बहुत मोटिवेशनल बुक है, आप भी उसको रेफर कर सकते हैं। और मैं जॉन एफ कैनेडी के भी वर्ड्स यहाँ पे बोलूंगी। ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country, your समाज, your social। आप क्या कर सकते हैं, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम ऐसी लाइफ तो सभी जीते हैं जो सिर्फ घर में रह के, बट घर में रह के भी आप और क्या कर सकते हैं। तो साथ में जैसे मिनल के भी कुछ शब्द थे, मैं भी अपने शब्द ऐड करूंगी। फाइनली, जो सफर को इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं, बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। So again, I would like to convey my deep sense of gratitude to Minal and entire team for giving me this opportunity to interact with lovely and beautiful women. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was definitely an honor to have you, and even more of an honor to hear such words from you. इतना वर्सेटाइल प्रोफाइल शायद सिर्फ फीमेल्स ही कैरी कर सकती हैं, इतनी डाइवर्सिटी और इतनी क्रिएटिविटी अपने प्रोफाइल के अंदर। एंड बहुत राइटली यू सेड कि हमारे को अपने पैशन को भी नर्चर करना है, और शायद ये लॉकडाउन और कोरोना टाइम्स में कुछ टाइम मिला है हमारे को अपनी भागती हुई जिंदगी में ये समझने का कि हाँ ठीक है, यू नीड टू लुक बैक टू योर पैशंस आल्सो एंड यू हैव टू नर्चर दैट आल्सो। एंड दैट्स प्रिसाइसली द रीजन, जैसा आपने कहा कि ये कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट में हमने करने की कोशिश करी है, कि हमने उन फीमेल्स को भी फेलिसिटेट करना जरूरी समझा जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म अपने लिए अपने आप से बनाया है। एज यू वेरी राइटली सेड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज यू, so you have to take care of yourselves. So thank you very much, ma'am, and we would appreciate if you be a part of it, the program, and listen to all these beautiful ladies and their journey and their things that they have to share with us also. Thank you. So before I move ahead, I just wanted to say that we are live right now on Facebook. So in case of any questions or any queries or that you want to ask our panelists, you can put it here on the Zoom, or you can also put it on Facebook for us to address. I also would like to acknowledge that our founder, Mr. M.K. Agarwal, who has actually been the founder for Professional Times and father of two beautiful professional daughters, have given him this pledge that he's always been biased towards women, and these three ladies sitting here also would probably acknowledge that. So yes, thank you for giving us this platform today to enhance our womanhood celebration. So moving ahead now with our first panelist celebration.
first of all, we'll move ahead with Mrs. Manisha Agarwal ji, who is the dietitian with us. So, एक अजीब सा रिश्ता है मेरा और ख्वाहिशों के दरमियान, एक अजीब सा रिश्ता है मेरे और ख्वाहिशों के दरमियान, वो मुझे जीने नहीं देते और मैं उन्हें मरने नहीं देती. शायद ये इनके प्रोफाइल को बहुत अच्छे से एप्ट और सूट करता है. So Manisha ji happens to be the mother of 2 kids, 17 years and 88 years old. She happens to be from a small town, Rampur, and then she got married to chartered accountant Ritesh Agarwal ji, who happens to be a proud chartered accountant and a media head of the Delhi Prant of RSS also. And he's been contributing to all these corona times में वो बहुत ज़्यादा social service में, social front में बहुत लोगों को help कर रहे हैं, काढ़ा provide करके, food for the poor provide करके. So he's definitely doing a great job. And so is ma'am doing it. So by qualification she happens to be an MSc from chemistry, and उसके बाद B.Ed करने का इनका मन नहीं था, teaching line में जाने का मन नहीं था, तो she shifted from MSc chemistry to nutrition, and she is now a PG diploma in dietetic and nutrition, a certified diabetic educator, a nutritioner and a child care counselor. And बहुत ही अच्छे वे में एक फ्रीलांसर वे में she is contributing to this field of diet and nutrition. Initially she was into job and then she quit her job because of this family management, child management, attention management, which all women face at this point of time जब उनको लगता है कि family becomes the priority. So she also chose that way, and but blessing in disguise, she's doing wonders since that as a freelancer. So now without taking much time between you and Manisha ji, so Manisha ji कुछ सवालों के जवाबों के थ्रू आज आपसे रूबरू करके हम अपने ऑडियंस तक आपका मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. So पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि कैसे आपने अपना शिफ्ट किया फ्रॉम MSc to MSc in chemistry to nutrition and dietitian. So ये आपकी जर्नी कैसे रही, अगर आप कुछ चंद शब्दों में हमारे साथ शेयर करें तो. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू प्रोफेशनल टाइम्स, और मीनल आपको भी थैंक्स, महेश जी को भी, कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझसे ये क्वेश्चन किया कि मैंने कैसे, मुझसे बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है, तो क्योंकि MSc केमिस्ट्री इज अपोजिट टू न्यूट्रिशन, तो कि कैसे आपने शिफ्ट किया, क्या किया, तो इसके पीछे भी रीजन मेरी फैमिली ही थी. मेन रीजन तो मेरी फैमिली ही थी कि माय फादर वाज लाइक ही इज डायबिटिक. बहुत साल पुरानी बात है, तो वो डायबिटिक थे, और डायबिटिक थे उसके साथ ही साथ जो है उनको हार्ट अटैक आ गया. तो दिस इज अराउंड 16 साल, 16 ईयर्स और 17 ईयर्स हो गए. तो आई बिलोंग टू रामपुर, अ स्मॉल टाउन. हम लोग को इतना न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं थी, तो धीरे धीरे उनको क्या हुआ, हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद हार्ट डैमेज हुआ, उसके बाद उनकी किडनीज भी फेल हो गई, तो वो बहुत अर्ली एज में चले गए. तो आई वॉज वेरी शॉक्ड. तो मुझे लगा कि ठीक है, मैंने MSc, ही वॉज प्रोफेसर, ही वॉज इन टीचिंग लाइन, तो सबको यही था कि बेटी भी टीचिंग लाइन में ही जाएगी, जब फादर टीचिंग लाइन में तो बेटी भी टीचिंग लाइन में ही जाएगी. तो मुझे लगा कि अगर मुझे थोड़ी सी नॉलेज होती, कुछ पता होता कि मुझे कि हम क्या अच्छा सा डाइट प्लान करके उनकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ा देते, या उनको किडनी फेलियर या उनको हार्ट डिजीज आती ही नहीं, अगर उनकी एक अच्छी सी डाइट, या मुझे पता होता कि क्या मैं डाइट में ऐड करूं, क्या मैं हटाऊं, कि जो है वो अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाते. तो एक तो बहुत बड़ा रीजन ये था. फिर दिल्ली में फैसिलिटीज ज़्यादा है, रामपुर में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो मैंने सर्च करा, बहुत लोगों से पूछा. मेरा मन था कि मैं कुछ इसी फील्ड में करूं और कुछ क्रिएटिव भी होना चाहिए. तो फिर मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया, और शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट था, केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन. आई वॉज लाइक क्राइंग कि मैं कैसे समझूं इसे, और उस वक्त कोई भी यूट्यूब या कुछ ऐसे फैसिलिटीज नहीं थी. आपको लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पर बुक्स रीड करो, तभी आपको कुछ पता चलेगा. और मैंने मतलब ये ओपन यूनिवर्सिटी से किया था, तो मुझे कुछ ऐसा गाइडेंस भी नहीं थी. तो मैंने बहुत हार्ड वर्क किया इसे समझने के लिए. पूरे दिन बुक्स में लगी रहती थी, इधर उधर आर्टिकल्स ढूंढती रहती थी, बहुत हार्ड वर्क किया. फिर मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको पास आउट किया. फिर पूरा जर्नी स्टार्ट हुई स्लोली
इंटर्नशिप, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैंने स्टार्टिंग में तो सिर्फ एक मुझे था कि मैं हाँ न्यूट्रिशन की फील्ड में जाऊं, लेकिन ये फील्ड ऐसी है कि जितना आप इसके अंदर जाओगे उतना इंटरेस्टिंग है, ऐसा लगता है और इसके अंदर जाओ, जैसे समंदर होता है ना, और नीचे जाओ तो आपको और ज्यादा अच्छा खजाना मिलेगा। ये बिल्कुल वैसी ही फील्ड है, जितना आप इसके अंदर जाओगे उतना आपको अच्छे अच्छे रत्न, सुंदर, बहुत सारा ट्रेजर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेफिनेटली आपकी स्टोरी, मैंने जैसे कहा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दिस इज द वुमन पावर दैट वी ऑलवेज हैव, कि आपने अपनी एक जो डिस्गाइज सिचुएशन थी, दैट योर फादर वाजंट वेल, और उसको आपने जैसे आपने कितना बताया कि प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। मेरे हस्बैंड सोशल वर्कर हैं, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा सोशल वर्क कुछ नहीं हो सकता। मैंने ये कोर्स कुछ कैरियर ओरिएंटेड या कुछ मनी मेकिंग के लिए नहीं किया था, और वैसा ही मैंने स्टार्टिंग में जॉब करी, बट जैसे मेरी बेटी हुई तो मैंने जॉब छोड़ दी, बट मेरा कोई मन भी नहीं है जॉब करने का। फ्रीलांसिंग एंड सोशल सर्विस, जितना ज्यादा मैं न्यूट्रिशन को, इसकी नॉलेज को फैला सकूं, वीडियोस बना के मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती रहती हूँ, मैं फेसबुक पे पोस्ट करती रहती हूँ, कि जितना ज्यादा अवेयर हो जाए। प्रोफेशनल टाइम्स पे भी आप पहले आ चुके हैं, सो वी डेफिनेटली नो कि आप काफी ज्यादा सोशल अवेयरनेस फैला रहे हैं और नॉन कमर्शियली इसको एज अ सोशल सर्विस कर रहे हैं, सो वी डेफिनेटली प्राउड एंड एक्नॉलेज दैट। सो मनीषा जी, दूसरा सवाल मैं आगे बढ़ती हूँ, और ये सवाल तो ऑफ कोर्स एक ऐसा सवाल है जो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और आज हमारे जितनी भी फीमेल पैनलिस्ट हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि आज का सेशन हमने जो रखा है डाइट एंड न्यूट्रिशन का, वो हमने इम्यूनिटी, वेट लॉस, इन सब से थोड़ा सा परे, बट वुमेन्स के लिए जरा अपीलिंग हो, वो स्किन एंड हेयर एंड ब्यूटी, इसमें डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, इसके ऊपर थोड़ा सा हमने सेंट्रिक करने की कोशिश करी, क्योंकि हम इसने पिछले दिनों में बहुत कोरोना की वजह से इम्यूनिटी के ऊपर बहुत बातें कर चुके हैं, बट लोग घर पे बैठे हैं, तो अब उनको बहुत पार्लर्स और सैलून्स बंद होने की वजह से भी काफी सिचुएशंस हैं, घर पर अपने आप को कैसे मेंटेन करें और कैसे मैनेज करें। तो आज वी वुड वांट यू कि इफ यू कैन गिव अस सम टिप्स through where diet and nutrition can play a role in skin and hair and beauty. वैसे मैं ये सोचती हूँ कि जो मैं मैसेज फैलाना चाहती थी, जो मैं सबको देना चाहती थी, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनको मैं जो समझाती थी उस वक्त नहीं समझते थे, अब कोरोना के टाइम सबको वही जो मैं पहले बोलती थी अब सब उसी पे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए तो बेनिफिट ही है कि मैं सबसे पहले यही बोलती थी कि ऐसे करो, लेकिन भाग दौड़ में कोई सुनता नहीं था, लेकिन अब सब अच्छे से सुन रहे हैं बात को। जी मैम। तो जो ये स्किन और हेयर है, हम क्या चाहते हैं कि हमारी स्किन कैसी हो, हम एवरीबडी नीड्स कि हमारी स्किन, आवर स्किन ग्लोज लाइक अ बेबी, ऐसा शाइन करे, एकदम शिमर करे हमारी स्किन, हमारे हेयर एकदम हेल्दी हो, फ्लॉन्ट करे हमारे हेयर। सबकी यही इच्छा होती है कि भाई हमारी स्किन एकदम हेल्दी दिखे, ग्लो करे, जैसे एक बेबी की स्किन होती है ना, उसे टच करो तो इतना सॉफ्ट फील होता है, ऐसे हम सबके फेस में जो स्माइल आ रही है ना इस समय, जो पैनलिस्ट को जिनको मैं देख रही हूँ, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सब अग्री कर रहे हैं आपकी इस बात से। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इतने सुंदर दिखें, तो हमें कैसा डाइट लेना चाहिए? हमें एक सुंदर डाइट लेना चाहिए। अगर हम फुल ऑफ लाइफ दिखना चाहते हैं तो हमें कैसा फूड लेना चाहिए? हमें अलाइव फूड लेना चाहिए, हमें ऐसा फूड लेना चाहिए। अगर हम यंग दिखना चाहते हैं तो हमें यंग फूड लेना है, हम अलाइव दिखना चाहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी दिखना चाहते हैं, तो हमें ऐसा ही फूड लेना है जो फुल ऑफ एनर्जी हो, जो अलाइव हो। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि अलाइव फूड क्या है, यंग फूड क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम खाते हैं, जो भी हमारी डाइट है, उस डाइट का 40 to 50% हमारा रॉ फूड्स होना चाहिए। रॉ फूड मीन यंग फूड मीन्स कि जो भी आप मार्केट से लाते हो, एक तो वो फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश फूड होना चाहिए, और उसे जितना हम कम से कम कुक कर सकते हैं उतना कम से कम कुक करके 50 to 60% हमारी डाइट उससे बनी हुई होनी चाहिए। अगर आप यंग फूड खाओगे तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, अगर आप अलाइव फूड खाओगे तो आपकी स्किन पे झुर्रियां नहीं आएंगी, आपका पिगमेंटेशन नहीं होगा, अपने आप ही बॉडी, जो भगवान ने हमारी जो ये मैकेनिक जो मशीनरी अंदर बनाई है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतनी स्ट्रॉन्ग मशीनरी कोई भी नहीं है, ये बहुत सारे झटके झेल जाती है, उसके बाद जाके कहीं ये खराब होती है।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, इसके साथ खिलवाड़ करते हैं। तो वो और फिर शॉर्टकट्स, आजकल तो शॉर्टकट्स बहुत चल रहे हैं कि ये छोड़ दो तो आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, हम ये ले लेते हैं, ये क्रीम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं तो हमारी स्किन ग्लो करेगी। तो शॉर्टकट्स तो कभी भी लाइफ में होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लाइफ में शॉर्टकट्स करेंगे तो लाइफ हमारी तो शॉर्ट हो जाएगी। तो आपका जो भी खाना पीना होना चाहिए वो कम से कम आप कुक करें। उसके लिए क्या है कि हमें थोड़ा अपना टेस्ट बड्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें अपना फूड पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, अभी जब हम 4-5 महीने से सब घर पे हैं तो अभी तो हम मैनेज कर ही रहे हैं बाहर नहीं जाके। तो थोड़ा सा अगर हम अपनी स्प्राउट्स हैं, अगर फूड है, रॉ वेजिटेबल्स हैं, या फिर जो है कि आप जो वेजिटेबल्स कुक करते हैं उन्हें बॉईल करके उन्हें अच्छे से उसमें लेमन और स्पाइसेस डाल के अगर उन्हें आप खाते हैं तो आपकी स्किन बहुत यंग रहेगी, क्योंकि आप जो अंदर से जो आपका न्यूट्रिशन होगा उसका जो इफेक्ट आएगा स्किन पे, वो आप बाहर से कुछ भी अप्लाई कर लीजिए, बाहर वाला हमेशा फॉर द स्मॉल टाइमिंग रहता है, थोड़े दिन के लिए रहता है, फिर जो आपका अंदर जो आप न्यूट्रिशन लेते हो वो फॉर एवर रहता है। और दूसरी बात, अगर आप को स्किन और हेयर बहुत दिन तक यंग रखने हैं तो उसके लिए बेस्ट है शीर्षासन। तो आप सब सोच रहे होंगे शीर्षासन तो बहुत टफ है, बट इट इज नॉट टफ, ये सब लोग कर सकते हैं, बहुत ओल्ड एज को छोड़ के बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस चाहिए। अगर हम डेली 5 to 10 मिनट शीर्षासन कर लें तो हमें कोई भी क्रीम भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमारी स्किन और हमारे हेयर इतने यंग हो जाएंगे, सिर्फ प्रैक्टिस है और उसका होल्डिंग टाइम है, इतना सिंपल है। आप विदाउट सपोर्ट मत करिए, आप वॉल के सपोर्ट से करिए, क्योंकि इसके पीछे भी बेसिक है कि हम पूरे दिन खड़े रहते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो हमारी स्किन और हेयर पे कभी नहीं जाता। जो ब्लड है वो हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन जब तक हमारे फेस पे, हमारी फेस की मसल्स में और हमारे हेयर में नहीं जाएगा तो सबसे पहले हमारी फेस की स्किन क्यों डल होती है, हमारे जो झुर्रियां आती हैं वो बॉडी पे बाद में आती है, पहले हमारा फेस खराब होता है। तो उसका सिर्फ यही रीजन है कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती। तो ऑक्सीजन सप्लाई जितनी अच्छी होगी आपकी स्किन उतनी यंग रहेगी, आपके हेयर उतने यंग रहेंगे। तो और बाकी डाइट में क्या है, एक बहुत अच्छा सा टिप है कि अगर किसी की मैरिज होने वाली, शायद मैंने पहले भी बताया था मुझे ध्यान नहीं, तो आप अगर सुबह 15 दिन हल्दी की टी, ग्रीन टी की जगह हल्दी की टी ले लेंगे तो आपको प्री ब्राइडल भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी। हल्दी इतनी अच्छी, रॉ हल्दी जो आती है, जो पिसी हुई हल्दी होती है वो नहीं, जो अदरक की तरह आती है, तो वो इतना अच्छा है कि अगर आप 15 दिन ट्राई कर ले एम्प्टी स्टमक तो आपकी स्किन वॉज जस्ट लाइक शाइनिंग। तो ये एक बहुत अच्छा टिप है। बाकी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ही है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट को सिंपल और सात्विक भोजन जो कहते हैं, सिंपल और रॉ फूड्स और स्प्राउट्स और फ्रूट्स ये सब ऐड करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और आपको किसी भी डाइटिशियन, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट, किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एकदम फिट और हेल्दी हो जाएंगे। Sure. थैंक यू मनीषा जी। सो अगर मैं आपसे अब क्विकली बस ये पूछूं कि जब डाइट और न्यूट्रिशन और स्किन केयर और इन सब चीजों की बात आती है ना मैम, तो देर आर सम मिथ्स जो इंडस्ट्री में चलते हैं, जो लोगों को चलते हैं, और आज जैसे कि ये व्हाट्सएप की दुनिया चल रही है जिसमें सबसे बड़े डॉक्टर व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो बहुत सारे मिथ्स हैं जो लोग कैरी करते हैं अपने साथ। तो ऐसे ही कुछ 4-5 मिथ्स हैं जो हमने, हमारे व्यूअर्स ने हमारे को पहले भेजे और हमने अपने कोलेट करे हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि उस पे आपका क्या कमेंट है और क्या क्लैरिटी है उसमें, एक्चुअली रियलिटी क्या है उसके पीछे की। तो जैसे कि पहला एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो स्किन और हेयर के लिए हम जनरली पढ़ते हैं कि ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर, सो इज इट ट्रू? See, drinking water is very good, but it depends on your age, on your weight, on your appetite, on your body composition. क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत स्वेटिंग होती है तो ऑब्वियसली उनको पानी ज्यादा ही पीना पड़ेगा, लेकिन जब आप हमेशा ये सुनते हैं कि सबको 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीना ही चाहिए, इट इज नॉट ट्रू। जरूरी नहीं है कि आप 8 से 10 ग्लास पानी पिए, अगर आपको कम प्यास लगती है तो आप 7 to 8 कप्स पानी पीजिए, ग्लास भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप 60 प्लस है तो आपको बहुत ज्यादा पानी की पीने की जरूरत नहीं, क्योंकि
वाटर का क्या है, फिल्ट्रेशन किडनीज करती हैं, हमें एक्स्ट्रा प्रेशर किडनीज पे अपने नहीं डालना चाहिए। एक 25-30 की एज और एक 50+ एज में डिफरेंस होता है। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों को एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। एक्सेसिव यूरिनेशन में उनके बॉडी के मिनरल्स निकल जाते हैं, तो अगर वो पानी पीते हैं तो उन्हें सिंपल वाटर नहीं पीना चाहिए, उन्हें वाटर में कुछ जैसे फ्रेश फ्रूट्स ऐड कर लें, फ्रेश वेजिटेबल्स ऐड कर लें, हल्दी का पानी पी लें, ऐसा कुछ कोरिएंडर वाटर पी लें। तो ऐसा कुछ वो पिएंगे तो उनके बॉडी के जो मिनरल्स सब निकल जाते हैं, वो पूरा होना पड़ेगा, पूरा हो जाएगा। जो डिप्लेटेड स्टोर्स होते हैं वो उनके फुलफिल हो जाएंगे। तो पानी हमेशा अपनी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग पीना चाहिए। जिनको ज्यादा स्वेटिंग होती है वो ज्यादा पानी पिए, जिनको कम स्वेटिंग होती है उनको कोई नीड नहीं है कि वो 10 ग्लास पानी पिए। जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, जितना आपको प्यास लगती है, आप उसके अकॉर्डिंग कीजिए। थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट पूछना चाहती हूँ, वो ये कि ये बोलते हैं कि ये जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ जो होता है ये अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से इसका इसका इंसेप्शन होता है। सो इज दैट अ ट्रू थिंग? जो डायबिटीज, जो हार्ट डिजीज, जो ब्लड प्रेशर या जो भी डिजीज, बाकी जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, वो हमारी डाइट से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होती हैं। वो एक तो उसका रीजन होता है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी में भी अगर आपको पता है कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को ये डिजीज है, तो आप उसको कंट्रोल रख सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करके। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग बहुत मीठा खाते हैं, उन्हें कभी डायबिटीज नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रेस और जो डिप्रेशन और जो एक्सेसिव वर्कलोड है, वो इन चीजों का रीजन होता है। कभी भी डाइट इन क्रॉनिक डिसीजेस का रीजन नहीं होती है। जो आपका गलत लाइफस्टाइल है और जो मेन जो इस टाइम का रीजन है, जो बहुत अर्ली एज में डायबिटीज होने लगी है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, स्ट्रेस। जो हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक बहुत जल्दी होने लगे हैं, उसका भी ओनली रीजन है डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, एक्सेसिव वर्कलोड। बाकी डाइट नहीं है उसका रीजन। ओके, थैंक यू मैम। एंड लास्टली बस मैं अब आपसे एक ये चीज पूछना चाहूंगी कि हमारे ये जो पूरा ब्यूटीफुल पैनल है और जो हमारे व्यूअर्स हैं, आज काफी सारी फीमेल फ्रेटर्निटी है, मेल फ्रेटर्निटी भी है जो ये सारा मैसेज घर जाके पास ऑन करने वाली है, तो उनके लिए अब आप फाइनली एक कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे सारे लेडीज को और व्यूअर्स को? मैं तो सारी लेडीज से यही कहूंगी कि जो भी चाहे हाउस वाइफ है चाहे वर्किंग है, वो उन सभी को न्यूट्रिशन का एक 6 मंथ का जो सर्टिफिकेट कोर्स है, एक बेसिक नॉलेज तो जरूरी हो। क्योंकि मैं न्यूट्रिशन की फील्ड से हूँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि जो हम लोग जो लेडीज हैं, इनके ऊपर ये प्रोफेशनल भी होती हैं और हाउस वाइफ भी होती हैं। जो प्रोफेशनल है वो भी हाउस वाइफ है, उन पूरी फैमिली का जो न्यूट्रिशन का एक चार्ट होता है वो वही बनाते हैं। तो अगर आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज होगी, अगर आप एक बेसिक नॉलेज आपको न्यूट्रिशन की होगी, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। अपनी जो फैमिली है उसको अच्छे से मेंटेन, उनकी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं, और जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको भी अच्छे आप अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। तो ये एक मेरे लिए उनकी टिप है कि छोटा सा कोर्स होता है तो वो जरूर करें। तो एक बेसिक नॉलेज न्यूट्रिशन की सबको होनी चाहिए, नहीं तो हम काफी गलतियां कर देते हैं जो हमें पता नहीं होती और उसकी वजह से हमारी हेल्थ पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। राइट मैम। सो थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर आपके ये सारे टिप्स हमारे बहुत काम आने वाले हैं और वी विल ऑलवेज गेट बैक टू यू। अगर कोई बाद में भी मैम को अप्रोच करना चाहता है तो प्रोफेशनल टाइम्स के थ्रू हम जरूर आपको कनेक्ट कर सकते हैं मनीषा जी से। आप लोग अपना मैसेज और अपना सब कुछ हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। Thank you, Manisha ji, for always being available and for sharing these beautiful insights and beautiful tips with us. We hope and we wish that we get glowing skin and hair for all of us following some tips of yours sitting at home. So thank you once again. अब हम चलते हैं आगे अपने सेकंड पैनलिस्ट की तरफ। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। इस सेशन के लिए हमारे पास हमारे व्यूअर्स में बहुत एक्साइटमेंट भी है, हमारे पास बहुत क्वेश्चंस भी आए हैं, बहुत पीपल वी आर रियली वेटिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट। तो कुछ इंट्रोडक्शन से आप शायद समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाती चली गई, मैं जिंदगी का साथ निभाती चली गई और हर फिक्र को
नंबरों से भगाती चली गई। सीए की वाइफ है तो नंबर्स के साथ खेलना और डिंगल करना तो ऑफ कोर्स इनकी आर्ट है, इनका फॉर्से है ही है। तो ऐसा है कुछ न्यूमरोलॉजी का साइंस जिसको हमारी नेक्स्ट पैनलिस्ट जो है मिसेस सविता अग्रवाल, उन्होंने अपनाया है। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इसके अंदर बहुत चेंजेस करे हैं इसके थ्रू। तो अगर उनके कुछ इंट्रोडक्शन की बात करी जाए तो अलवर राजस्थान से बिलोंग करते हैं और फिर शादी कर दिल्ली आ गए हैं। एज आई मेंशन्ड that she is a proud wife of again a chartered accountant, Mr. Lalit Agarwal ji, who's practicing in Delhi. She is the mother of two kids, 28 years old and 25 years old daughter and son she has. And लर्निंग बाय डूइंग इज व्हाट इज हर मंत्रा इन लाइफ। जो उनकी जर्नी अभी हम उनके जुबानी सुनेंगे भी तो हमें पता चलेगा कि लर्निंग बाय डूइंग इज हर मंत्रा ऑफ लाइफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैम की, जो व्हेन आई वाज इंटरेक्टिंग विद हर तो बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया कि she in 1986 she qualified with her MSc degree in zoology. So to be very honest, even I wanted to Google first of all and be very sure that what exactly zoology is all about. And 1986 में somebody doing zoology is definitely something very interesting. And zoology to numerology, ये जर्नी मैम बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी हमारे सारे व्यूअर्स के लिए जानने की। फ्रॉम जूलॉजी टू न्यूमरोलॉजी का सफर कैसा रहा, सविता जी? या थैंक यू मीनल फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगा तुम्हारा बातें सुन के, बहुत अच्छी बातें बोलती हो। जूलॉजी से न्यूमरोलॉजी का सफर, जूलॉजी तो क्या है कि एक पढ़ाई करनी थी और इंटरेस्ट था। मैंने फिश बायोलॉजी में एमएससी किया तो एक रुझान था उधर, तो साइंस बैकग्राउंड से थी तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। शादी के बाद फिर दिल्ली आ गई। उसके बाद कहीं ना कहीं दबा हुआ एक पैशन तो था ही अकल्ट साइंस की तरफ, तो उसको करती चली गई। बाद में फिर एक सज्जन मिले मुझे 2006 में, तो शायद उन्होंने मेरे नंबर देख के ही बोला कि आप सारा दिन करती क्या है, और एक बुक बताई कि बोले आप ये पढ़िए, बहुत इजी है और आपको शायद आ जाएगा। शायद नहीं, उन्होंने कहा डेफिनेटली आ जाएगा। मेरे से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट वो थे। मैंने मीनल उनको पढ़ना शुरू किया बुक्स को, और फिर जो मेरे अंदर शायद कोई छुपा हुआ पैशन था वो शायद बाहर आने लगा, और मैं लगभग सारा दिन उसी चीज में खोई रहती। हर जगह ध्यान नंबर्स पे जाता था, लोगों को बताती गई, फीडबैक आए, और लर्निंग बाय डूइंग मेरा ये प्रोसेस चलता रहा। आज मुझे कई साल हो गए, अच्छा लगता है, और मुझे लोगों को बता के अच्छा लगता था। लोग मेरे से बोलते हैं कि आप इसे कमर्शियलाइज क्यों नहीं करते, तो मुझे जो लोगों के फीडबैक आते हैं और उनसे पता लगता है कि हाँ मैम आपने ये बताया था, काम हुआ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो मुझे लगता है कि शायद यही मेरी फीस है। फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है, हो सकता है इसे कमर्शियलाइज करूं, लेकिन अभी तो इस तरह से उनके कहने से, मेरे ख्याल से सामने वाले ने मुझे पहचाना कि ये कुछ कर सकती हैं इस फील्ड में, और मुझे बताया। और हो सकता है शायद ये मेरे पैशन को बाहर आने के लिए यही किसी का कहना ही वेट कर रहा था, और उनका एक छोटा सा सजेशन। बाद में उनसे डिस्कस मैं जरूर करती थी टेलीफोनिकली, क्योंकि वो बाहर रहते थे, लेकिन हाँ मतलब अपने से काफी कुछ सीखा, उनसे भी सीखा, और फिर धीरे धीरे आता गया। जी। सो सविता जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये कि किसी ने आपके हुनर को परखा और अब आप बहुतों के हुनर को परख कर उनको ये लेगेसी पास ऑन कर रही हैं। और बहुत खुशी हो रही है ये देखकर कि जैसे मनीषा जी ने भी कहा कि वो अपने इस पैशन को बहुत ज्यादा कमर्शलाइज नहीं कर रही हैं। सिमिलरली आप भी अपने इस पैशन को सिर्फ एक पैशन नर्चरिंग के लिए कर रहे हैं, सोशल सर्विस के लिए इसको यूज कर रहे हैं, कमर्शलाइज नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, शायद फ्री की एडवाइस इतनी ज्यादा लोगों को रास नहीं आती है, तो आप जैसे कह रही हैं कि सोचना चाहिए आपको आगे कि कैसे आपको इसको यूटिलाइज करना चाहिए। तो डेफिनेटली, बट बिफोर वी एक्चुअली मूव अहेड मैम, एक क्वेश्चन जो सब शायद यहाँ पर बैठे हुए लोग आपसे जानना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं आप आज हमारी, और सब घर में बैठे बैठे पिछले 4 महीने से आई एम श्योर हस्बैंड वाइफ बच्चे सब एक ही क्वेश्चन जानना चाहते हैं। और अगर न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट यहाँ आए तो हम जानना चाहते हैं कि क्या कोरोना का कोई समाधान हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब वापस हमारी जिंदगी नॉर्मल हो सकती है, कब इस कोरोना को गुड बाय कहने का मौका हमें मिल सकता है। तो आपकी न्यूमरोलॉजी इस बारे में क्या कहती है, हम जानना चाहते हैं।
मीनल, इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं एक चीज बताऊंगी कि ये जो वायरस, जो ये एपेडेमिक हमारे जीवन में आई है, इतनी बड़ी जो ये आपदा आई है, पूरा वर्ल्ड इसको झेल रहा है। अगर न्यूमरोलॉजिकली इसे देखें तो इस समय हम साल 2020, अगर इसको सम अप करें तो 4 में जुड़ के आता है ये, ठीक है। 4 नंबर जो है वो किसी भी तरह की चीजों या इस तरह के लिए एक अच्छा नंबर नहीं माना जाता, और अनफॉर्चुनेटली हम इस साल इस तरह की चीजों को झेल रहे हैं, और ये बहुत बड़ी आपदा है। इसका ओरिजिन चाइना को माना जा रहा है, ठीक है। चाइना को अगर हम एड अप करें तो वो 15 पे जुड़ के आता है, और 15 का कनेक्शन अगर 4 से हो जाए, जैसा कि इस समय हो रहा है, 15 का कनेक्शन 4 से होने से हमें ये नुकसान हुआ कि वो चाइना जैसी कंट्री से इस वायरस का ओरिजिन हुआ और ये पूरे वर्ल्ड में फैला है। अब एक चीज और है, इस बीमारी को नाम दिया गया कोविड-19, जो कि सब बोलते हैं, अभी केमिशा जी ने भी बोला और सभी बोलते हैं, लेकिन ये वही काम कर रहा है जैसे एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो मैं चाहूंगी कि प्लीज इसको कोविड-19 ना बोल के कोविड ही बोला जाए, या कोरोना बोला जाए, वो भी ठीक है। कोविड-19 तो एटलीस्ट ना ही बोला जाए तो ठीक है। अब आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन कि भाई ये कब तक जाएगा। तो एज पर न्यूमरोलॉजी अगर इसको हम देखते हैं तो 4 का कनेक्शन जो साल चल रहा है 2024, 4 का कनेक्शन 8 के साथ भी अच्छा नहीं होता, जो कि आने वाला महीना है यानी अगस्त का। 4 का कनेक्शन 9 यानी सितंबर के साथ भी अच्छा नहीं माना जाता। तो इन 2 महीनों को छोड़ दें। हाँ, लेकिन 4 का पॉजिटिव नंबर 1 होता है अक्टूबर। तो पॉजिटिव नंबर के साथ जब ये 4 जुड़ेगा तो मेरे अकॉर्डिंग अक्टूबर के महीने में इस बीमारी में थोड़ा रिलीफ आना चाहिए, और मैं कहती हूँ भगवान ऐसा ही हो। तो मेरी पूरी यही है कि अक्टूबर के महीने में इस बीमारी से थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलने वाला है। Okay, so ठीक है, still some months to go. ठीक है. So see, that's how yes, Shivangi, fingers crossed. So that's how this world of numerology is. तो मैं बताती हूँ कि मैं छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ, और उसी के तहत मैं अपना दूसरा सवाल भी पूछूंगी कि मैंने मैम से कहा कि आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए अपने फोन में, एंड उन्होंने कहा ठीक है, हाँ, MEENAL सेव कर लिया मैंने। तो मैंने कहा नहीं, मैं MINAL लिखती हूँ। सो 2 मिनट्स का पॉज आया, और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि MEENAL लिखोगी ना मीनल तो शायद तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। एंड मैंने कहा अच्छा, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को बोला नंबर सेव कर लो तो वो इस तरीके से उसमें इतनी फास्ट कैलकुलेशंस करके शी कुड रिवर्ट मी बैक। सो दैट इज द आर्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, एंड दैट इज हाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे मैम, कि जब आपने न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में अपनाया तो कैसे कैसे आपकी रूटीन लाइफ में चेंज आए, और प्रिसाइजली फॉर द ब्रॉडर ऑडियंस अगर हम ये पूछना चाहें कि अपनी रूटीन की जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर हम न्यूमरोलॉजी का यूज करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। जो कि मुझे समझ आता है शायद कि न्यूमरोलॉजी साइंस एक एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है जो आपको आपका फ्यूचर बता सकता है या कुछ, बट हाँ, आपके फ्यूचर को कैसे बेटर किया जा सकता है, लाइफ की जर्नी को कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके बारे में जरूर ये हैंडी होता है। तो अगर आप हमें ये बता पाए कि रूटीन की कौन कौन सी चीजों में हम न्यूमरोलॉजी का हेल्प लेकर उसको बेटर कर सकते हैं अपनी लाइफ को। मीनल, शायद आम लोगों का ध्यान अपनी लाइफ में नंबर्स जो यूज होते हैं उनकी तरफ नहीं जाता होगा, पर एक एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मेरा हर चीज पे ध्यान जाता है। सपोज आप कहीं दुकान पे शॉपिंग के लिए गए और बिल का नंबर आया तो वो भी मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या आया, मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये तो एक सिंपल सी छोटी सी रोज की बात हो गई। लेकिन जैसे आप अगर घर खरीदने जाते हैं, घर रोज रोज तो खरीदे नहीं जाते, तो घर खरीदने जाते हैं या गाड़ी लेने जाते हैं, या आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए, होटल के किस कमरे में रुकते हैं, वो कौन से फ्लोर पे है, या फिर आप अगर आपके बच्चे कोई फॉर्म भर रहे हैं वो कौन से डेट को भर रहे हैं, या जो भी डेली लाइफ में नंबर्स इतने ज्यादा हमारे रिपीट होते हैं कि हर चीज पे ध्यान जाता है। देखो, बहुत ज्यादा किसी चीज में घुसना, अति हर चीज की बुरी होती है, लेकिन हाँ, नंबर्स, जहां तक कोशिश यही होती है कि जो नंबर मेरे अकॉर्डिंग या जिसको भी मैं सजेस्ट कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग हो, वो उसको फॉलो करे तो ज्यादा अच्छा है उसकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए। अब आपने बोला कि एस्ट्रोलॉजी, और एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ब्रॉड साइंस है
जिसमें शायद अगर सही कैलकुलेशन या पढ़ने वाला हो तो वो बहुत कुछ बता सकता है, बहुत कुछ। लेकिन न्यूमरोलॉजी कॉम्पैक्ट साइंस है, इसमें फ्यूचर इतना नहीं, फ्यूचर की कुछ चीजों के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बताया जा सकता कि आप समझे कि पूरा पूरा फ्यूचर बता देगी, नहीं, पूरा फ्यूचर नहीं, लेकिन आपकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए न्यूमरोलॉजी काफी अच्छा वर्क करती है। और वो लोगों के लाइफ में नेम नंबर चेंज करने से या उन्हें कुछ बताने से हुआ भी है। आई एम श्योर कि इन सारे वैल्यूएबल टिप्स के थ्रू हम ध्यान रख सकते हैं कि जब भी इस तरीके का कुछ लाइफ में करने जा रहे हो, कोई माइलस्टोन अचीव कर रहे हो, तो हम न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा ध्यान रखें तो शायद चीजें बेटर हो सकती हैं। हमारे पैनल पर सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट मिसेस मंजू अग्रवाल भी हैं। शी इज अ CA, शी इज प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट more than 30-40 years, and we want to acknowledge her presence also. And we also have Mrs. Shobha Jain. She also happens to be a very a very renowned numerologist and palmist. So thank you for joining, ma'am. We're really happy to have you all ladies on our panel today. So इसी सवाल जवाब में सविता जी अब आपसे आगे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे जो मेन चीज है न्यूमरोलॉजी साइंस की, कि एग्जैक्टली ये नंबर गेम है क्या, और दे से कि जैसे आपने मेरे को बताया कि व्हाट इज इन द नेम हैज बीन सेड बाय शेक्सपियर, बट आई एम वेरी श्योर दैट देयर इज अ लॉट इन द नेम जो मुझे समझ आया न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो अगर कुछ आप हमारे को टिप्स दे पाए एज पर योर न्यूमरोलॉजी फटाफट कि कैसे हम लकी हो सकते हैं थ्रू न्यूमरोलॉजी। एंड ऑल्सो फॉर द लार्जर ऑडियंस, हम यहाँ पर आज कोशिश करेंगे कि अपने दो पैनलिस्ट का एटलीस्ट हम मैम के साथ कुछ एक लाइव न्यूमरोलॉजी सेशन जिसमें she can quickly tell us a few good things about you, the favorite color or the lucky color or the lucky number that you can take care of. So हम वो भी कोशिश करेंगे। So मैम क्विकली अगर आप ये बता सकते हैं कुछ जनरल टिप्स न्यूमरोलॉजी के अंदर टू गेट लकियर फ्रॉम। मीनल, अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, जिस नंबर 1 से 9 तक नंबर होते हैं, ठीक है, और हर नंबर जो है वो किसी एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ रहता है, और उस प्लैनेट के लिए एक डे भी फिक्स है। तो अगर जैसे मैं बोलूं कि एक नंबर, तो जो पीपल 1, 10, 19, 28 तारीख को बॉर्न है, वो अपने काम, अगर संडे उनका डे होता है, अगर संडे को अपना काम करे, इंपॉर्टेंट काम, और उसी के अकॉर्डिंग कलर जो सन से रिलेटेड कलर होते हैं, गोल्डन येलो, गोल्डन शेड जो है, अगर वो पहने तो वो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसी तरह सारे नंबर्स के साथ इस तरह का होता है। तो इस तरह से हम अपने जो बर्थ डेट है उस पे अगर अपना इम्पोर्टेंट काम करें तो उसके लिए वो लकी डे होगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि यहाँ पे वक्त कम है, इसलिए मैं अगर थोड़ा ही बताऊं तो सही है। जैसे 1, 10, 19 या 28, अगर इन 19, 28 को हम सम करें तो 1 आता है। तो इस नंबर के जो पीपल बोर्न है वो 1 नंबर होते हैं, तो अपनी सारे अच्छे वो अपनी जो मीटिंग्स है संडे को रख सकते हैं, या फिर अगर वो तारीख संडे को नहीं है तो किसी और दिन है उस दिन रख सकते हैं, और उसी कलर के कपड़े वगैरह पहने मीटिंग रखें, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी टिप होगी। क्या मीनल और बाकी सब नंबर्स के बारे में भी जानना चाहोगे? मैम मुझे लगता है लिस्ट बहुत लंबी है आपके तो नंबर्स की, एंड यू कैन गो ऑन एंड ऑन। टू मेक इट अ लिटिल इंटरेस्टिंग, मेरे ख्याल से हम एक लाइव सेशन करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि शायद हमारे सारे व्यूअर्स को समझ में भी आएगा कि ये न्यूमरोलॉजी साइंस किस तरीके से वर्क करती है। तो टू स्टार्ट विद, लेट्स व्हाई नॉट, आज हमारे पास वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि बहुत ही 2 सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट फीमेल मेंबर्स यहाँ हैं, मंजू अग्रवाल जी और कमीशा जी। तो क्यों ना उन्हीं को हम आज ये एक अपॉर्चुनिटी लेते हैं। So we can start with कमीशा जी। So कमीशा जी, अगर आप अपने नाम की एग्जैक्ट स्पेलिंग एंड डेट ऑफ बर्थ, राइट मैम, सविता जी यही आप जानना चाहते हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मीनल। तो ये अगर आप हमारे पैनल को बता सके तो yeah, spelling like KMISHA, as you can see on my that scene also there, KMISHA.
KIKEMISHA. हाँ. Yes. Only Kamisha. And date of Kemisha Soni, SONI, that is. Surname SONI. Okay. Yeah. आपकी डेट ऑफ बर्थ? 28 28 August 70 1970. ओके. केमिशा जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, अभी तो मुझे थोड़ा इस पे वर्क करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं 28 देखूं तो ये आपको मैं पहले ही बता चुकी कि 1 नंबर यानी कि अव्वल नंबर. आप अपने फील्ड में, जैसा कि अभी सुना और देखने से ही पता लग रहा है कि आप अपने फील्ड में यानी जो सीए के उसमें है, आपने कितने अवार्ड जीते, 1 नंबर है. तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के पता लगता है. ठीक है. अब आपने बताया कि 28 अगस्त 1970 बॉर्न है आप. ये जो 28 है ये आपका पर्सनल नंबर या लकी नंबर जो भी 1 नंबर हो गया. उसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ का आपका टोटल करते हैं तो वो आता है 17. ओके, राइट? ओके, या 8. अगर इसको सिंप्लीफाई करें, हम सिंप्लीफाई करके एक सिंगल नंबर पे ले आते हैं. अगर इसको करें 8 आता है. ठीक है, 8. यस, 8 आता है. और अब आपके नाम को मुझे ऐड अप करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे 1 मिनट चाहिएगा. अगर हम आपके नाम की स्पेलिंग को एड अप करते हैं तो केमिशा जो है वो 21 पे जुड़ के आता है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा नंबर है. और उसमें अगर सोनी ऐड करते हैं, सोनी 16 पे जुड़ के आता है. अगर हम इनको सब दोनों को ऐड करते हैं तो ये वापस से 10 बन जाता है, यानी कि 1. आपके नंबर को अगर मैं देखूं तो इससे पता लगता है कि आपके नंबरों में काफी हार्मनी है, क्योंकि आपका नेम नंबर केमिशा बहुत अच्छे नंबर पे जुड़ के आता है. आपको लाइफ में राइज करने के लिए इन नंबरों का बहुत अच्छा, केमिशा नाम जो है वो उसने बहुत अच्छी हेल्प करी. साथ में सोनी उसमें जुड़ गया तो उसने भी आपको बहुत अच्छी हेल्प करी उठने में. और 1 नंबर, तो आप अपने फील्ड में देखिए टॉप पे तो है ही. गलत कह रही हूँ? आप नहीं, सही कह रहे हैं मैम. एब्सोल्युटली राइट. हाँ, आप मतलब अपने फील्ड में टॉप पे हैं और आपने काफी कुछ किया है. अच्छा, क्या आपने कभी जॉब भी अपनी चेंज की है, या प्रैक्टिस करते हो, या कहीं जॉब की हो पहले, ऐसा कुछ किया है? प्रैक्टिस ही रही है, बट हाँ फील्ड चेंज करती रहे. फील्ड चेंज की है. ये हाँ, फील्ड चेंज की बात मैं आपको, आपका जो नंबर 28 है आपकी डेट ऑफ बर्थ, उससे बता रही हूँ. क्योंकि 28 नंबर जहां भी आएगा उस नंबर के लोग जनरली अपनी एक फील्ड से दूसरी या एक जॉब से दूसरी जॉब में जाते ही जाते हैं, जो कि आपने किया है. राइट? एब्सोल्युटली. बात आपके अब रही बात आपका जो डेस्टिनी नंबर है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो 8 है. 8 नंबर ट्रायल एंड एरर. तो आपके नंबर्स को देखते हुए मैं ये तो कह सकती हूँ कि आप अपने फील्ड में टॉप पे रहे, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताता है कि इसने आपको बहुत, कहते हैं ना, एकदम जकड़ा भी है. जैसे आपको बहुत लाइफ में कठिनाइयां भी आई होंगी, इतनी इजीली आपको ये सक्सेस नहीं मिली होगी. ऐसे कि कि तो हम देख पा रहे हैं मैम उनके प्रोफाइल से कि कितना वर्सेटाइल और डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल है. सो यस, ऑफ कोर्स शी इज बीन और काफी टफ रहा, मतलब नॉट इजी जर्नी. इजी जॉब नहीं रहा. जैसे केक वॉक हम कहते हैं, वो आपके लिए नहीं रहा. आपको इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ा, जो कि आपको इसमें लोगों का आलोचना भी झेलनी पड़ी होगी. और लोगों ने आपकी लेग पुलिंग, देखो वो सब जगह चलता है, आप कह दोगे नहीं ये तो सब है. लेकिन आपके केस में आपकी लेग पुलिंग भी हुई और आपको इतना इजीली वो नहीं मिला. अब बाकी चीजें तो मैं जब आपकी पूरी स्टडी करूंगी तब आपको कब सक्सेस मिली या आप कब चल रहे हैं, वो सारी तो चीजें बात की हैं. लेकिन अभी एट प्रेजेंट देखने से आपके नंबर्स और वो, और आप अपना नाम केमिशा भी लिखें या केमिशा सोनी लिखें, दोनों ही वर्क करेंगे. लेकिन मेरे हिसाब से सजेस्टिव है कि केमिशा सोनी आप पूरा नाम लिखें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. Okay. 1 नंबर आपके लिए लकी नंबर है. आप अपना काम कोई भी हमेशा सन से रिलेटेड जो कपड़े हैं वो पहनिए. येलो, गोल्डन येलो,
या ऑरेंज शेड में जो होते हैं वो पहनिएगा। आप मैम in order to manage the time, because हमारी जो तीसरी स्पीकर है वो भी काफी देर से बहुत पेशेंटली बैठे हैं, हम चाहते हैं कि एक और सेशन हमारा लाइव हो पाए। So Kamisha ji, of course, for details we are always have this session again. Really very interesting. Yeah, thank you Savita ji. Thank you Kamisha ji. Yeah, thank you. मंजू अग्रवाल जी, जैसा कि मैंने बताया कि शी इज अ सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट practicing in Delhi Rajendra Nagar last 35 years, and she's been into job initially Bhel में she was working, Ind AS में इनका बहुत strong practice है, and she's been a speaker in the institute on Ind AS topic also, and she's been a part of the CISA committee also. So we are very thankful and proud to have such a personality with us today. So Manju ji, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड आपका फुल नेम अगर आप हमें बताएं। सो सविता जी, नेम यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट्स MANJU AGRAWAL। ओके, हाय मिनल, हाय सविता जी। सो आपने जो अभी कमीशा के लिए कहा, मेरा भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 दिसंबर एंड 1960 है। So see how chartered accountants are, numbers की जहाँ बात आती है खुद ही शुरू हो जाते हैं। So शायद अदरवाइज लेडीज से उनका एज और उनका डेट ऑफ बर्थ इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं निकलवा सकता। मंजू जी, मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए प्लीज। 1 दिसंबर 1960। 1 दिसंबर 1960 60। ओके। बट ये सविता जी का ही टैलेंट है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वी कैन हैव द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ऑल दीज लेडीज। मंजू जी, आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी बताई 1 दिसंबर 1960। 1960। या मंजू जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 यानी कि 1, ठीक है। जैसा कि 1 नंबर है वो अव्वल ही है, अपने उस पे रहता है। आपने उस जमाने में सीए करी तो नेचुरली एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर करते हैं तो 2 आता है, ठीक है। आप में विल पावर तो बहुत अच्छी है मंजू जी, लेकिन आप डिसीजन मेकिंग नहीं है। आप डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगाती है, ये करूं ना करूं, ये थोड़ा सा आपकी विल पावर को थोड़ा सा हिलडुल करता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? हेलो, शायद। ओके। हाँ, आपको ज्यादा पता है, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ देख के आपकी। होता है, डिसीजंस लेने में थोड़ा टाइम तो लगता है। हैं जी? हाँ, डिसीजंस लेने में थोड़ा टाइम लगता है। डिसीजन लेने में टाइम लगता ही है, वो आपके नंबर्स बता रहे हैं। विल पावर में आपकी कोई कमी नहीं है, आप हमेशा टॉप मोस्ट में ही रहना चाहती हैं हर जगह, और वो आप में है, लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपकी थोड़ी सी कम है, ठीक है। अब आते हैं मंजू अग्रवाल पे। आपका मंजू नाम 17 पे यानी 8 पे जुड़ के आता है। अग्रवाल AGARWAL आप लगाते हैं, वो भी 17 पे जुड़ के आता है। दोनों को ऐड करें तो वो आ जाता है, मेरा आता है AGRA। मेरा अग्रवाल से आई यूज AGRAWAL। कोई बात नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू वही रहेगी, वो वैल्यू वही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी 17 पे जुड़ के आता है, जो कि अगर हम दोनों को ऐड करें तो 34 यानी 7 पे हो जाता है अगर सिंपलीफाई करें तो। अब ये 7 नंबर बताता है कि आप थोड़ी सी स्पिरिचुअल हैं। वो तो बोलेंगे कि हाँ सभी होते हैं, लेकिन आपका रुझान क्या है कि स्पिरिचुअल है। ठीक कह रही हूँ मंजू जी? हाँ बिल्कुल हूँ, बिल्कुल स्पिरिचुअल है। आपकी जो विचार है वो थोड़े फिलोसफिकल टाइप हैं, ठीक है। आपके जो विचार होते हैं जैसे फिलोसफिकल टाइप, ठीक है। आपको जर्नी करना, यात्रा करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत पसंद है। सविता जी, मैम के लिए लकी नंबर क्या हो सकता है, अगर आप ये एक बारी बताना चाहें तो? मैम के लिए लकी नंबर 1 होगा मीनल, 1। आपके लिए लकी नंबर 1 होगा जी। ओके।
हाँ, और आपको और फेवरेट कलर इनके लिए कोई जो इनका जो फेवरेट कलर वही सन का कलर जो है गोल्डन कलर में, जो जैसे येलो है या फिर ऑरेंज कलर है, जो सन की शेड होती है वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। और किसी भी महीने की 1, 10, Okay. 19, 28 तारीख को आप अपने काम करें, मीटिंग करें, वो आपके लिए हमेशा फेवरेबल रहेगी। 1, 10, 29 आपने बोला, 1, 10, 19, 1, 10, 19 जिनका भी टोटल 1 होता है, ओके, जिनका भी टोटल 1 ठीक होता है, वो उन डेट्स को आप अपना काम करें कोई, तो वो आपके लिए हमेशा अच्छे रहेंगे। आपको इधर यात्रा करना बहुत पसंद है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। और आपके लिए जो आप ट्रेवल करते हो वो हमेशा बेनिफिशियरी होता होगा आपके लिए, हाँ बिल्कुल है ना? बिल्कुल। हाँ, फिलहाल तो आपके नंबरों को देख के इतना बता पा रही हूँ, बाकी फिर श्योर हम डिटेल में जरूर आपसे थैंक यू कांटेक्ट करेंगे। सविता जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मंजू थैंक्स अ जी, लॉट। थैंक यू मंजू जी। ओके, सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था सविता जी, थैंक यू। मेरे ख्याल से इस तरीके का लाइव हम लोगों ने पहले कभी नहीं करा है कि हमें लाइव एक एक्सपर्ट से गाइडेंस मिली हो, तो थैंक यू वेरी वेरी मच। एंड लास्ट में अब ना ज्यादा टाइम लेते हुए, मैं पहले तो बहुत थैंकफुल हूँ आशिमा जी का कि जिन्होंने बहुत पेशेंटली हमारे को सबको सुना और अपना टाइम दिया। एंड somebody has to be kept in the last, so my apologies, but जैसे कि आशिमा जी के बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो 2 लाइनें हैं, अगेन उनकी उनकी खूबियों को बखान करने के लिए या उनका एक बैकग्राउंड बखान करने के लिए। अपनी मर्जी से कहां अपने सफर से हम हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर से हम हैं, रुख हवा का जिधर का उधर के हम हैं। तो जैसे जैसे लाइफ में इनके साथ जो जो चीजें होती गई उसको ही अपनी ब्लेसिंग्स के अंदर, जैसे कि मैंने कहा कि अपने लिए कन्वर्ट करती गई और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोशल एंटरप्रेन्योर की तरह आज ये एस्टैब्लिश है और समाज के लिए काम कर रही हैं। अगेन एज द बैकग्राउंड, एज आई मेंशन, शी इज आल्सो अ प्राउड चार्टर्ड अकाउंटेंट वाइफ। इनके हस्बैंड मिस्टर जिंदल बहुत रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिस्टर अनिल जिंदल। एंड we are proud to have you here today, Ashima ji. So आशिमा जी के बैकग्राउंड के बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ, उनका इंट्रोडक्शन, जिससे कि हम सब समझ पाए, तो she has been into the teaching profession and she's been teaching economics to students for a very long decade period of time, and then फिर last 10 सालों से इन्होंने अपना teaching का profession छोड़ा। And the reason of course we all know कि जब motherhood prevail over the passion or over the profession, तो हम लोग हमेशा से ही motherhood को preference देते आए हैं अपनी सभ्यता में, and that is the reason she wanted to do justice as a mother, and so she quit her job as a teacher. But कहते हैं ना कि जॉब तो छोड़ दी, बट पढ़ने की जो लालसा थी वो ये नहीं छोड़ पाई। और जैसा कि अगर इनके व्यक्तित्व को और इनकी हिस्ट्री को समझने और इनके पूरे व्यक्तित्व को समझे तो यही कह सकते हैं कि पढ़ना और उसको पास ऑन करना, उसको सर्व करना इनका लाइफ का हमेशा से एम रहा है, और उसी एम को एज अ टीचर इन्होंने पूरा किया, और उसके बाद अब एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर ये अपना रोल प्ले कर रही हैं। शी इज अगेन द मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल किड्स, अ सन एंड अ डॉटर, 28 and 24 years old, एंड काफी ब्यूटीफुल इनकी जर्नी है। सो पहला सवाल आशिमा जी, सबसे पहले थैंक यू अगेन फॉर बीइंग पेशेंटली अवेलेबल टू अस। सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगी कि फ्रॉम अ टीचर टू एक सोशल एंटरप्रेन्योर में आपकी जर्नी किस तरीके से रही, जिससे कि मैं आई एम वेरी श्योर कि आपके व्यक्तित्व से बहुत सारी होम मेकर्स जो है इंस्पायर हो सकती हैं। तो आपकी जर्नी अगर आप हमारे से कुछ चंद शब्दों में शेयर करना चाहें तो। थैंक यू मीनल फॉर योर काइंड वर्ड्स। तुमने बहुत अच्छी प्रेज किया, इस मुझे लगता है कि शायद मेरी पर्सनैलिटी से ज्यादा ही प्रेज कर दी तुमने। तो मैं अपनी स्टार्टिंग से बताना चाहूंगी कि मैं एक स्मॉल टाउन से थी जहाँ पर गर्ल्स का पढ़ना बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन मेरी चाइल्डहुड में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स मैंने देखे कि मुझे लगा कि देखा कि वुमेन के ऊपर थोड़े से टॉर्चर हो रहे थे। तो मैंने उसी टाइम से ये सोचा कि मुझे कुछ करना है इन लोगों के लिए, या मुझे अपनी लाइफ इस तरह से नहीं जीनी। तो मैंने बचपन से ही मेरा हार्ड वर्क था और मैंने अपनी स्टडीज के ऊपर पूरा फोकस किया। तो जिस फैमिली में मैं थी उसमें हॉस्टल जाना और कॉलेज जाना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन फिर भी वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो मुझे धीरे धीरे सबका सपोर्ट मिलता चला गया। पहले मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद मेरे को एमफिल करने का भी चांस मिल गया।
तो इसी दौरान फिर मेरी इच्छा थी कि मैं स्टडीज के बाद मैंने फिर यही सोचा कि मुझे सर्व भी करना है कुछ। पहले तो मुझे टीचिंग का बहुत शौक था, मैंने कॉलेज में और स्कूल में काफी टीचिंग करी, और उसमें मेरे को एक जैसे ही मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो मुझे एक आप कह सकते हो टारगेट मिला, क्योंकि मेरी जो सीनियर जो मेरी जिनकी जगह पर मैं गई थी, तो उन्होंने मेरे प्रिंसिपल ने बोला कि मैं चाहता हूं कि लोग उनको भूल जाएं। तो मुझे समझ आया कि शी हैज बीन वेरी ग्रेट टीचर बिफोर मी, तो मैंने उसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया। तो और उसको मैंने जब मैंने स्कूल छोड़ा, देन आई एम वेरी लकी कि मैंने उसको अचीव किया, और मेरे स्टूडेंट्स मुझे आज भी बहुत याद करते हैं। तो इस तरह जब मैंने जो स्कूल छोड़ा, अपनी फैमिली प्रायोरिटीज थी, बच्चे थे, बच्चों की करियर गोइंग क्लासेस थी, तो उस टाइम जो है मैंने अपनी फिर एकदम, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ फोकस ही स्टडीज पे किया था, तो उसके बाद फिर मुझे क्या मतलब एकदम से शौक लगा कि मैं अब क्या करूं। तो धीरे धीरे मुझे फिर एकदम जैसे चांस मिला कि मैंने रीबर्थ एकेडमी ज्वाइन किया। तो वहां पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि मुझे हर अवार्ड वहां पे मिला, और मेरे को इतना अच्छा लगा कि वो बेस्ट जो ऑलराउंडर थी मैं, उसका भी मुझे एक स्पेशल अवार्ड दिया गया वहां पे। तो इस तरह मुझे फिर और कॉन्फिडेंस मिला, मतलब वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में भी आना शुरू हो गई। और इसके बाद जैसे कहते हैं कि अपने आप रास्ते बनते हैं, आप सोचो वेयर अगेन वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो फिर मुझे धीरे धीरे एक एनजीओ के साथ ज्वाइन करने का मौका मिला, और वहां से मेरी जो सोशल जर्नी है वहां स्टार्ट हुई। तो उस क्लब मतलब दैट वाज अ क्लब, आई ज्वाइंड एज अ जनरल सेक्रेटरी। मेरा एक मंत्र है अपने लिए कि जो भी करो उसको फुल्ली करो, उसको मैं मतलब कोई भी काम करती हूँ तो फुल्ली डिवोशन के साथ करती हूँ। तो वहां भी मुझे बहुत अच्छा मौका मिला। इसके बाद मेरे साथ ये हुआ कि वो जिस डायरेक्शन में मैं जाना चाह रही थी, हम थोड़ा सा उस लीग से हट गए, तो इसलिए फिर मुझे लगा कि मेरी जर्नी यहाँ नहीं है, तो मैंने सोशल वर्क अपने घर से स्टार्ट किया। आज आप मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगता है कि मेरी आसपास के जो भी लेस प्रिविलेज्ड पीपल हैं यहाँ पर, वो मुझे पहचानते हैं। मैं सबको कहती हूँ स्कूल जाओ, ये करो, और लेडीज हैं जो मेरे घर में जितनी मेड्स हैं उनको मैं बताती हूँ कि आपने कैसे अपने बैंक अकाउंट खोलने हैं, कईयों के साथ बैंक अकाउंट्स खुलवाए, उनके मैंने पैसे जमा कराने उनको सिखाया, ऑपरेशन सिखाए, और उनको हॉस्पिटल्स जाना सिखाया, आईडी कार्ड्स बनाने सिखाए, आधार कार्ड बनाने सिखाए। तो इस तरह जो है मेरे को बहुत मुझे सेटिस्फेक्शन फील हुई इसमें। तो इस तरह मेरी जो है एजुकेशन से मैं सोशल की तरफ आ गई। आशमा जी, एक एज एन होम मेकर टू सोशल वर्कर आपका एक मंत्रा है जिसे आप बहुत ही ब्यूटीफुली HCF मंत्रा कहते हैं, तो 2 लाइनों में अगर आप अपना HCF मंत्रा हमारे साथ शेयर करना चाहें तो, क्योंकि आई एम श्योर दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। वो HCF मंत्रा एक्चुअली मेरे बेटे के लिए उनके टीचर ने दिया था, वो CA ही हैं RK दादू सर। तो जब हम उनके पास उनको लेकर गए बेटे को, तो उन्होंने बोला बेटा CA का तो सबसे पहले HCF मीन्स हार्ड वर्क, then hard work should be consistently going on, तो C means consistency and F means focus। तो वो और इसके साथ मेरे को अपना लगता है कि ऑनेस्टी, और इसके साथ टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सबके लिए मुझे लग रहा है एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो ये मेरा HCF वाला फॉर्मूला आज तक चल रहा है। राइट मैम। अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि ये जैसे कि मैंने बोला कि लॉकडाउन के अंदर काफी हम लोगों को समय मिला अपने अपने पैशन को एक्सप्लोर करने का, और आप जैसे कि आप एक सोशल प्रेन्योर की तरह रीबर्थ से जुड़ी हैं, देवृति से जुड़ी हुई हैं, शाम भवी से जुड़ी हुई हैं, और परिचय क्लब से जैसे आपने बताया जुड़ी हुई हैं, तो काफी सोशल सर्विस कर रही हैं। तो ये लॉकडाउन में आपके कुछ भाव हैं जो हमने देखे हैं, आप व्यक्त करना चाहते हैं कि कलयुग से सतयुग की तरफ जो हमारा रुझान हुआ है, जो इस लॉकडाउन में हम देखने को हमारे को मिला है, उस पे अगर आप कुछ अपने रिसर्च वर्क शेयर करना चाहती हैं जो हम श्योर हम सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानना। हाँ, उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि मैं देवदीप्ति मैंने ज्वाइन किया, तो देवदीप्ति इज जस्ट लाइक एन NGO, और वो कल्चर प्रमोट करता है हमारे लिए। जैसे इंडिया साड़ी चैलेंज है हमारा, उसमें हम साड़ीज को प्रमोट करते हैं। जैसे इंडियन कल्चर इज वेरी ब्यूटीफुल आई थिंक। तो उसमें जो है हमने जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो उसमें हमारे सेशन स्टार्ट हो गए, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड वी हैव अटेंडेड 78 सेशंस टिल नाउ फ्रॉम लॉकडाउन टू टिल दिस डेट। उसमें क्या है कि मतलब डिफरेंट हम टॉपिक्स डिफरेंट हमारे एक्सपर्ट्स आए, डेली 1 आवर का सेशन होता है,
और उसमें सिर्फ एक सबसे बड़ी मैंने जो चीज सीखी वो है चेंज योरसेल्फ नॉट अदर्स। सबसे पहला पॉइंट ये था, चेंज योरसेल्फ एंड बी पॉजिटिव इन ऑल द सिचुएशंस। तो उसमें जो है हमें बहुत सारे डिफरेंट पैनलिस्ट के साथ डिफरेंट मतलब बैक टू रूट्स। इस टाइम जो है मुझे लगता है कि जैसे लॉकडाउन है, मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था कि दैट इज समटाइम्स इट इज अ ब्लेसिंग टू अस। वो किस तरह की, पहले हमारे पास टाइम ही नहीं होता था, हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे, फैमिली के साथ नहीं बैठ पाते थे। तो अब जो है दैट इज वेरी मच ब्लेस्ड, वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच अ ग्रेट टाइम विद आवर फैमिली। और इसी तरह जो है हम लोग बाहर का खाना खाते थे, किट्टीज में जाते थे, मैरिजेस में जाते थे। तो अब जो है हमारे पास नो आउटसाइड फूड, दैट इज द सात्विक भोजन। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कलयुग, फ्रॉम कलयुग टू सतयुग। और हमारे पास अपने लिए सोचने का टाइम है, हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए हम काम कर सकते हैं, हम अपनी जो अनडिजायर्ड, जो है हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, उनको हम पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही है जो हम अपने बारे में सोच सकते हैं, वी कैन सिट आइडल एंड थिंक अबाउट आवर ओन सेल्फ। इसी तरह जो है हम अपनी स्पिरिचुअल चीजें, जो हमारे शौक पूरे नहीं हुए थे, जैसे म्यूजिक है, उसको भी हम अच्छे से पूरा कर सकते हैं। तो इस मतलब पेंटिंग मैंने इस दौरान मैंने पेंटिंग सीखी, मधुबनी पेंटिंग। और अब मैंने कोशिश की है कि मुझे म्यूजिक भी बहुत पसंद है, तो मैं म्यूजिक सीखने की कोशिश कर रही हूँ। इसी तरह मैं एक आर्टिकल राइटिंग का काम एक और कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मेरे को जो इंडियन कल्चर की स्टडीज का शौक है, वो भी मैं इसको स्टार्ट कर दिया। मैंने अभी सुनना स्टार्ट किया, तो मैं पढ़ना भी स्टार्ट करूंगी। तो उसके बारे में भी मैं, आप चाहोगे तो मैं बता सकती हूँ। हमारे पास समय की थोड़ी सी लिमिटेशन है, बट अगर सिर्फ कुछ चंद शब्दों में अगर हम ये कहें कि 2 टिप्स जो हैं आप शेयर करना चाहती हैं इंडियन कल्चर के बारे में, जो आप चाहते हैं कि हमारे सारे फीमेल्स फॉलो करें, सो सिर्फ कुछ 2 टिप्स आप अगर बताएं तो दैट्स हाउ इट विल बी। उसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि जैसे हमारा इंडियन कल्चर की पुरानी जो बुक्स हैं, जैसे मनुस्मृति हुई, आयुर्वेदा हुआ, टेम्पल्स हुए, तो उसमें क्या है कि दैट इज ओरिजिन ऑफ द सनातन धर्म, नॉट हिंदू कल्चर यू कैन से। ये सनातन धर्म है हमारा। हिंदू कल्चर में जो हम अपनी जो इंडियन संस्कृति है जिसको हम भूलते जा रहे हैं, उसका रीजन एक ये भी है कि हमें अपने विदेशी जो फॉरेन कल्चर पे ज्यादा विश्वास है, हम वेस्टर्नाइज हो गए। और दूसरा ये है कि हमें इस तरह करने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि आप अभी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों ने टाइम टू टाइम हमारे ऊपर राज किया, जैसे मुगल्स हो गए या ब्रिटिशर्स हो गए। तो उन्होंने उस पूरे इंडियन कल्चर को जो है, जो पुरानी हमारी संस्कृति है, उसको उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए चेंज कर दिया। तो अगर हम बिल्कुल ओरिजिनल चीजें पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा वी आर सो लकी टू हैव सच अ रिच एंड हेरिटेज। आप मंदिर देखोगे वो किस तरह वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं। और मनुस्मृति इज द ओरिजिन ऑफ आर ह्यूमन बींग्स, उसको आप एक बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आयुर्वेदा इज अ ब्लेसिंग टू आर लाइफ। आप देख उसको, मतलब दैट इज क्रिएटेड बाय द ऋषि मुनीज। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि वी शुड बैक टू आवर रूट्स। थैंक यू आशिमा जी। जैसे कि हमारे साथ इस पैनल पे और भी पैनलिस्ट हैं जो अपने हाँ व्यक्त करना चाहते हैं आप तीनों पैनलिस्ट को सुनने के बाद। तो मैं चाहती हूँ कोमल इसको समअप भी करें और कुछ शब्द कहना चाहती हैं वो अपने शब्द प्रेजेंट करें। सीए कोमल अग्रवाल। Hello everybody. After hearing all these 3 speakers, say so much about their life journeys as a woman and in their profession, I feel so proud myself to be a woman, and I feel that life is so long and there is so much to do. कितना सब कुछ है जो हम कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ। इतनी 3 different fields की ये सारी women हैं। दो इनके husband सारे CA हैं, मेरा भी husband CA है, and I am also a chartered accountant, but I feel inspired. There is so much to do. The sky is the limit. And I am really thankful to all the speakers and all our listeners of Professional Times. And I will, I've just written a poem. I'll just recite that. तू खुद की ही खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है,
जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न उनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पे गाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ओवर टू यू मीनल। थैंक यू कोमल। शिवांगी भी है हमारे साथ। If Shivangi, you want to add some words as a conclusive remark, and we can then follow with a vote of thanks. I would like to thank all the speakers. It has been a very motivating and quite an inspiring session. I feel privileged. I feel honored that being part of a Professional Times, I am getting to meet, though online, but yes, I am getting a chance to meet, to see all of you. And just listening to all these celebrated women of various fields, being young, yes, it gives us motivation, and it just helps us to know, and it just broadens our horizon. Yes, there is so much to do, and it's always about moving forward, going forward. And I feel very blessed to listen to all these speakers. It has been, thank you so much, ma'am, and thank you everyone. It was lovely to just to be able to see, and just to be able to listen to your journey or story so far. Thank you, Shivani. So we are very happy that we have another very celebrated woman with us, CA Sonia ji. She happens to be the vice chairperson of the Jalandhar branch. So thank you, ma'am, for joining in, and it's again a pleasure with that beautiful smile. आपने हमारे पैनल को और ज्यादा वाइब्रेंट कर दिया है। तो अब मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे तीनों पैनलिस्ट को थैंक यू वेरी मच अपना अपना टाइम देने के लिए हमारे को आज। एंड फॉर्मली मैं चाहूंगी सोनिया जी, अगर आप इस सेशन को एक ब्यूटीफुल नोट पर यू कैन गिव अ थैंकफुल नोट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस टू आवर पैनलिस्ट एंड ऑल आवर व्यूअर्स। Yeah, thank you so much, Meenal ji. It's really been so much seeing charming beauties on the face ना, तो आप कह रहे थे ना smile that automatically came to your mind. तो face पे आ ही जाती है जब इतने smart charming faces and so much, you all are full of energy, I must say. So women are already empowered. We don't need any empowerment, to be very frank. But just by listening all the learning and the stories of the others, we automatically feel motivated. Inspiration automatically gains to us. So I think it's a wonderful session, and you are, and the professional team, I must say, Time is doing a wonderful job. They are updating not only on a specific thing, but all round development. Either it's about the income tax or the GST and awareness about the corona, and right now you are pitching and touching the women sector also. He just came and share your views. So it's a wonderful idea you are coming up with, and thank you so much. Thanks to all the ladies for the inspiration they have given to the other ladies also. Thank you, ma'am. Thank you, Sonia ji. Thank you. So thank you once again. बस लास्ट में 2 लाइनें बोल के आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप सबका बहुत शुक्रिया। किन शब्दों में आप सबकी दो परिभाषा, नारी तुम सबकी हो आशा, खुशियों का संसार हो तुम, प्रेम का आगार हो तुम, घर आंगन को रोशन करती सूरज सी दमकदार हो तुम। किन शब्दों में तुम दो परिभाषा, नारी तुम हो सबकी आशा। सो कीप स्प्रेडिंग द पॉजिटिविटी, कीप इंस्पायरिंग। आप लोगों के अच्छे काम से बहुत सारे यंग फीमेल्स, बहुत सारी होम मेकर्स, बहुत सारे लोग अपने अपने फील्ड्स में अब आगे अपने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए आई एम श्योर जेन्युइनली इंस्पायर हुए होंगे। हम कोशिश करेंगे और ऐसे अपने पैनलिस्ट को बुलाने का और फिर दोबारा से ऐसे कुछ सेशन करने का, एंड आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे उसको ज्वाइन करने का। एंड थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन फॉर यू प्लीज प्लीज मैं आपके लिए एक ब्लेसिंग आई कैन विश फॉर यू। कुछ कहूँ मैं प्यार से, कुछ सुनो तुम प्यार से, जिंदगी आपकी हर पल हसीन हो, मैं दुआ करूं अपने परवरदिगार से।
Thank you so much. Means a lot. आप लोग सब मेरे लिए motherly figures हैं. Thank you very, very much for joining, and it was a pleasure having you all, ladies. Thank you for making the program very successful. Thank you all the viewers of Professional Times for coming and being part of this 2-hour session. It was wonderful having you all. Have a very empowered life ahead. Thank you. Thank you. Thank you, Meenal. Thank you, Meenal. Thank you. Thank you, Savita ji. Thank you, Manisha ji. Thank you, Meenal ji.